Here is Vijaypal Singh. Vijaypal Singh Bhadoria. Okay. And I'm zoology faculty. मैं आपको zoology पढ़ाऊंगा. And आप मेरे बारे में तो कुछ जानते नहीं होंगे. बताऊं अपने बारे में मैं? Tell something about me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, sure. उसके बाद मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, है ना? हम्म. Okay. So here's Vijaypal Singh. मैं around 10 years I taught in Akash Institute in a different center, like in Akash, Janakpuri Center, even Kota Center. And then from Kota Akash, I joined Allen Institute, Allen Career Institute, Mumbai Center, where I taught around 5 years. Okay. And and Allen, there is one of the very important batch, that is the Kohinoor batch. I think you heard about that. You heard about that Kohinoor, Alan Yes, Kohinoor? sir. No, sir. Yes, so Alan Kohinoor batches. So I was teacher in the Kohinoor batches, and where I कहने वाली बात नहीं है ये. बहुत सारी रैंक्स वहां पर हम लोगों ने प्रोड्यूस की. लाइक एक बच्चा आप देखेंगे, there is a Gagan Dalal, there is a kid, it's a Gagan Dalal, who gave 7th rank in the AIMS last year. He was my student for a whole 2 years. I taught him. So that's about me, a little introduction. And so, what about you? Okay, one by one. Anything you want to ask to me? Anything which you want to ask to me? Anything you can ask. In beginning we have little introduction, है ना? So just to we acquaint with each other. Okay, and so Vibhor Chaturvedi. Vibhor, tell something. Hello, Vibhor. Vibhor, I'm audible to you, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Vibhor, I'm audible to you? No? Vibhor, if I'm audible, please raise your hands or say something. Okay. Mamta Sayyed. Sorry, Anamta Sayyed. I'm Yes, sir. audible? Yes, Anamta Sayyed, tell Yes, sir. something about you. No? Yes, sir. Tell something about you, Anamta. Sir, So, I am Anamta from B01 batch. okay. What's your target? What is your goal, Anamta? What you want to become? Doctor? Or which type of doctor you want to become? Sir, Anamita? अभी वैसे कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ मेडिकल Yet की not तरफ ही decide. है. तो मेडिकल की तरफ ही inclined हैं आप. जी. That's great. Amit Tiwari, I'm audible to you? Yes, sir. Yeah, Amit, tell something about you. My name is Sir Amit Tiwari. I am from That's B01 I already batch. know. Yeah. So I am from B01 batch. Not informed. Don't give any information of the batches because I don't know about anything about batches. I want to ask you your name. That's I already knew. So don't. If this here the name of your father is visible, then you can say your name. No, otherwise, there's no need of the name. Just tell about what you want to become, like doctor. What's your goal? That's it. Okay. Fine. Yes, sir. Yes. So say what you want to become. I want to crack NEET 2021. How you want to crack? You just crack, just crack. हैं? कैसे क्रैक? कभी क्रैक तो बहुत सारे क्रैक होते हैं ना. एक तो हल्के से क्रैक करना, एक अच्छे से क्रैक करना. तो हाउ यू वांट टू क्रैक इट? बाय अचीविंग 700 marks or by achieving 580 or 590? Sir, above 650.
Okay, I fine. want. Okay, very good. That's great. And Krishna, hello, Krishna. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, tell something about you, Krishna. Sir, I want to become a doctor. A doctor. Okay, good, good, Krishna. Uh, Akhila, Akhila. Yes, Akhila. Yes, sir. Good evening, sir. Akhila, say something. What you want to become? So I do also wanna become a doctor, specifically at cardiologist. Okay, okay. You're going to treat the heart of the people. Hmm? Right, sir. Karuna is raised the hand. Karuna, want to say something? Hello, Karuna. Good evening, sir. Good evening, bacha. Tell. Sir, I want to join AFMC. That's great. Very good. It's very like there's a lots of opportunity. Lots of opportunity in FMC, and the life is also very punctual, very disciplined in army. So I think it is one of the best choice. And Yes, sir. Sanvi, Yes, sir. Sir, actually, it's not like final, but I have a great interest in neurology. So, and especially in the surgical area. So, I want to become a neurosurgeon, want to possibly. become a neurosurgeon. That's good. Very good. It's very complicated. It's very complicated, and so it's required lots of passion, patience um, and बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं when they see cadaver, when they see the body, they scare, है ना? So वो सब Sir, actually, I've been watching on YouTube like बहुत सारी brain surgery stimulations वगैरह, तो बहुत interest आता है उसमें. अब बहुत बिल्कुल, तो कुछ बच्चों को ये बहुत क्वालिटी होती है, बिगनिंग से इंटरेस्ट होता है, लाइक कैडेवर को देख के उनको डर नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छी बात है. दैट्स ग्रेट. एंड एंड एनीवन, प्रियांशु, हेलो प्रियांशु. हे प्रियांशु. Good evening, sir. यस स्वीटहार्ट, Sir, टेल. हम्म. sir, I want to become a heart specialist doctor, and if possible, I want to become a cardio surgeon. दैट्स I'm ग्रेट. सबको दिल का interested. इलाज करना है. सबको दिल का इलाज करना है. एंड सानवी, सानवी से बात डिस्कशन हो गया, सानवी से हो गया डिस्कशन. Yes, sir. ओके, शुभम. शुभम. Yes, sir. यस शुभम, टेल. Sir, I wanted to be a forensic doctor. ओके ओके, चलिए. तो ये इंट्रोडक्शन, और भी स्टूडेंट्स होंगे आई थिंक, बहुत सारे बच्चों के, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे. आई होप कि सभी का इंट्रोडक्शन इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स कंज्यूम द लॉट्स ऑफ टाइम, है ना? तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं. ओके, ठीक है. और आप कुछ मुझसे पूछना चाहें, एक बार मुझसे पूछिए. कुछ डिस्कशन करना चाहें तो मुझसे डिस्कशन कीजिए. कुछ बात करनी है आपको, कुछ भी आपको डिस्कस करना है कि सर क्या है, कैसा है, आपने कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, वांट टू आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन. हम्म, पूछना चाहते हैं आप? एनीवन फ्री टू आस्क. नो. No, sir. Okay. So, as I got information about your syllabus, that it's completed up to like digestive system. We have to start with the breathing and actions of gases. That's right, isn't it? Yes, Yes, sir. Respiration start yes, Yes, sir. sir. Yes, है ना? So we will start a breathing and actions of gases. Okay, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग. और कोई भी क्वेरीज है आपकी, स्टार्ट करने से पहले आप जान सकते हैं, कुछ भी आप परेशानी है आपको. डाइजेस्टिव सिस्टम तक आपका कंप्लीट हो चुका है ना?
हम्म Yes, sir. sir. वाइटमिन्स वाइटमिन्स ये सब कंप्लीट हो चुका था, वाइटमिन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, Yes, ग्रॉस sir. कैलोरिफिक वैल्यू एंड ये सब कंप्लीट हुआ था। Yes, sir. हो गया था. वाइटमिन्स भी हो गया। हम्म ओके Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम्म ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप आई डोंट, मैं कुछ कहता आपसे कहूंगा नहीं, पर आई होप आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आपको बहुत एंजॉय करेंगे आप इससे। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन इट एंड आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक और बात, मैं कुछ कुछ आपको कुछ कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत जरूरी है कि आप फोकस करें, कंसंट्रेट करें। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैं नहीं हूँ आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, है ना। तो आप जितना आप फोकस कंसंट्रेटेड रहेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यू गेटिंग, यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start the breathing and exchange of gases. Okay, okay, fine. Just a minute, beta. Just wait. It is visible to you, beta. Skin is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start. है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप एंजॉय करें इसे, मैं यही चाहूंगा। तो जस्ट लिसन केयरफुली। ओके, सो व्हाट इज द ब्रीदिंग? व्हाट इज द ब्रीदिंग? देखिए, मैं आपसे ऐसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे, व्हाट इज ब्रीदिंग। आप हम सब ने ना ड्यूरिंग द बिगनिंग हम सब क्या पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, कि इट इज इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड द एक्सलेशन ऑफ द CO2, ये सब डिस्कशन करते हैं हम। हम्म Yes, तो sir. क्या ये डेफिनेशन जो हम लोग जो बोलते थे अभी बहुत, जब हम 8th क्लास में थे, क्या ये सही डेफिनेशन है? क्या ब्रीदिंग यही है? हम्म बोले। Yes, sir. आइए चलिए हम देखते हैं। तो व्हाट इज द ब्रीदिंग? लिसन केयरफुली। ब्रीथिंग इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। Which type of process it is? It is a physiochemical Physiochemical process. process. Physiochemical process. Okay, what the meaning of physiochemical process? Listen, what the meaning of physiochemical process? Physiochemical, that means it is Sir, physical physical and as well chemical as process. chemical. Okay, like how it is physical? What is the physical process? That is the breathing. So breathing is a, I'm visible to you. I'm visible to you. Yes, sir. Okay. So what is physical? Look here. You can see. I'm visible to you. Yes, sir. Yes. So it is a physical process. So breathing is a physical process, and the oxidation of food material. What? Oxidation of food material means the breakdown of the food material, means the oxidation of glucose C6H12O6 को हम किससे रिएक्ट कराते हैं? पता है आपने, जब आप बहुत छोटे रहे हो आप O2 से. है ना, तो आपने पढ़ा Oxygen, होगा sir. कैसे करते हैं हम लोग। C6H12O6 प्लस, O2 gives O2. CO2 plus H2. यस, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं उसको, तो क्या होता है, एक एक क्या हो रहा है,
सब ऑक्सीजन के chemical प्रेजेंट breakdown. में ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। बर्न होके क्या रिलीज करेगा ये, इट विल रिलीज एनर्जी। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ये ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज को क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, क्या लिबरेट करेगा, वो क्या लिबरेट करेगा, लिबरेट Energy. energy. So this is the oxidation of food material. Clear? बच्चों, it is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So how we will explain the respiration, how we will define the respiration? It is a physiochemical process involving breathing, which is a physical process, and oxidation of food material. एक ऐसा process है, chemical process. And oxidation of food material is a chemical process. Not clear? बच्चे, Yes, sir. clear? Any Yes, problem sir. in it? Yeah. Any problem? बच्चों? No, sir. No, No, sir. sir. Okay. No, sir. So, okay. Just speak along with me. What is the respiration? It is a physiochemical process involving what? Breathing. Breathing. It is a Physical process. yes, an oxidation of food material. It is a Chemical chemical process. process. Chemical process. Chemical process. Right? Fine. Yes, sir. Yes, sir. Now हमने रेस्पिरेशन को क्या किया, हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्लियर बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. आप समझ रहे हैं ना? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या किया, हमने ब्रीथिंग को क्या किया, डिवाइड किया। तो सबसे पहले क्या होगा, दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप समझते हैं एनारोबिक का मीनिंग क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीजन, ओके, इट इज ऑक्सीजन, हियर इट इज, the spelling is wrong, so it is oxygen. Just a minute. So what is anaerobic respiration? Is a type of the respiration where oxygen is not used as an oxidant and the organic food is broken down completely to liberate energy without oxygen being used as oxidant. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ द, सिंपल सी बात है, इट्स अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वहां जहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, है ना। जो ऑर्गेनिक फूड है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, इनकम्प्लीट, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, इनकम्प्लीट, Incomplete breakdown. है ना, इनकम्प्लीट उसका ब्रेक डाउन हो रहा है टू लिबरेट द एनर्जी, है ना। इट मींस कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा, इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में क्या होगी, बोले, कम होगी. Less. कम होगी, yes. So it's a type of the respiration where oxygen is not used as an oxidant. Means simple हम बोलेंगे, तो इतना सब हमने डिफाइन किया, simply I will say, है ना, we would, है ना, कि it is a respiration in which oxygen is not involved, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा ये रेस्पिरेशन, तो इसे हम क्या कहेंगे, anaerobic respiration, anaerobic respiration. Clear? It is clear to you बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So it's a type of the respiration where oxygen is not used as an oxidant and the organic food is broken down incompletely to liberate the energy, okay, without oxygen being used as oxidant. Is it clear, bachcho? Yes. Is it clear? Yes, sir. Any problem in it? Any problem in it, bachcho? No, sir. Yes.
ओके, देखिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगे कि आप पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इसलिए, और आप सो नहीं रहे हैं, है ना। पता चला कुछ बच्चे पावर नैप भी ले लेते हैं इस बीच में, है ना। आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। हम्म। Yes, sir. Yes, हेलो। sir. Yes, Yes. sir. Okay. Yes, So sir. no. Okay. Now aerobic respiration, है ना। So what's the aerobic respiration? It's a type of the respiration. क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन का क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा। It's a type of the है ना respiration in which organic completely oxidized, completely oxidized with the help of oxygen into CO2 and H2O, into CO2 and H2O. It is clear to you, बच्चों? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? No, sir. Okay. Sir. So aerobic respiration is a type of the respiration in which organic food is completely oxidized with the help of oxygen into CO2 and H2O. Fine. Sir. हाँ बोले। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फिर ऑक्सीजन की जगह क्या यूज होता है फूड को ब्रेक डाउन करने में? बेटा you are not audible. You are not audible to me. Please speak loud. Yes. सर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की जगह क्या यूज होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए? आपने कभी फर्मेंटेशन देखा है? फर्मेंटेशन देखा है? फर्मेंटेशन जानते हैं आप? Yes. नहीं। तो कैसे होता है? जैसे था, आपने देखा होगा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन नहीं जानते आप? फर्मेंटेशन इज आल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने आपने उसको देखा है? ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी का यूज ही हो। लाइक ग्लूकोज को अगर आपने पार्शियली ब्रेक हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन देखा आपने मसल्स में, Sir, lack of oxygen में। या जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारी जो बॉडी जो मसल्स होती हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। किसमें? लैक्टिक एसिड में, लेकिन वो पार्शियली ब्रेक होगा। नहीं समझे? हेलो Yes, बच्चों। sir. सो दैट इज, Yes, sir. हाँ, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सारे टाइप का होता है। इट इज अ फर्मेंटेशन, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है, दैट इज आल्सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझे? ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ में से रिएक्ट करके ही वो किसी में ब्रेक करेगा। समझ गए? नहीं समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ओके, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन इट? एनी सर प्रॉब्लम? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें फिर हम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हुआ ऑक्सीडेशन नहीं तो है। बोलेंगे ही, ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है ना। इट ना, ऑक्सीडेशन का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, ऑक्सीडेशन तो हम कहेंगे। ओके सर। समझे नहीं समझे? ऑक्सीजन भले ही वो ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, स्टिल वी विल यूज ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर? यस सर। क्या हम आगे चलें? कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ना। सो ये हमने बात की आपसे ब्रीदिंग की डेफिनेशन की एंड टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट, क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। आई होप यू ऑलरेडी स्टडीड एनिमल किंगडम। Yes, sir. Yes, पढ़ा है sir. आपने Yes, sir. एनिमल किंगडम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम सब बात करेंगे, है ना। आई होप आप सभी को पता होगा क्या क्या, कहां पर कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी जनरल बॉडी सरफेस। किसकी बात करेंगे हम लोग? जनरल बॉडी सरफेस। ओके, तो जनरल बॉडी सरफेस का मीनिंग क्या है? जनरल बॉडी सरफेस का मतलब क्या है कि देखिए, जब जो एक्सटर्नल बॉडी है वो वाटर के डायरेक्टली क्या है? कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में? वाटर के। लाइक आपको मैं देख रहा हूं, मेरा हैंड दिख रहा है, मैंने अपना हैंड दिखाया अभी आपको। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो मेरा हैंड है, ये जो मेरी स्किन है, इफ इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर,
अगर ये डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में है तो हम क्या करेंगे, इस CO2 को वाटर में रिलीज कर देंगे और जो वाटर में जो ऑक्सीजन है उससे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, यानी हमारी जो बॉडी सरफेस है उससे डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन एक बात होनी चाहिए वहां पे कि बॉडी जो सरफेस है वो वाटर के लिए कैसी होनी चाहिए, वाटर के लिए कैसी होनी चाहिए बता, सरफेस जो है वो वाटर के लिए कैसी होनी चाहिए। Permeable. यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो वाटर के लिए परमेबल होनी चाहिए, जबकि हमारी स्किन वाटर के लिए कैसी है, Impermeable. Impermeable. यस। तो सरफेस जो है दैट शुड बी परमेबल फॉर वाटर। समझे, जैसे आपने देखा होगा किसको, अर्थवॉर्म को देखा है आपने, जो स्किन से रेस्पायर करता है, वो भी उसकी अर्थवॉर्म की जो स्किन कैसी होती है, हमेशा मॉइस्ट रहती है, कैसे रहती है, मॉइस्ट Yes, sir. वाटर, है ना। यस, तो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, मीन्स यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, समझे मेरी बात, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, कहां पर नहीं है, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, and there is one more, Ctenophora and Platyhelminthes. So Porifera, Coelenterata, and Ctenophora and Platyhelminthes. You heard about na Ctenophora? You know Ctenophora? It's one of the phylum. It's very similar with the Coelenterata. Yes, sir. Yes, Sea sir. Yes, sir. Okay. Can you tell me one example of Ctenophora? Eurobrachia. Very good. किसने दिया आंसर, आंसर किसने दिया ये, अच्छा आप लोग जो बोलते हैं मैं क्या जान सकता हूँ, एक्चुअली अर्लियर आई वाज यूजुअली, है ना, आई यूज्ड टू टेक क्लास ऑन जूम एक्चुअली, है ना, सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट इज नॉट बैड, आई थिंक इट इज बैड, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा सर पहली बार यूज कर रहे हैं गूगल मीट। हेलो नहीं बच्चों, सर, ऐसा नहीं लगा। No, sir. ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग फर्स्ट टाइम गूगल मीट बिकॉज मैं जूम पर क्लास लेता हूँ जो है ना, और वहां पर मैं स्क्रीन शेयर करके करता हूँ, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने किया है आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों के यहाँ पर ऐसे ही होता है। ओके, सो आई होप आपको ठीक लग रहा होगा, यू आर कंफर्टेबल। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो लेकिन मैं ऐसे कैसे जान सकता हूँ कि कौन आंसर दे रहा है बच्चा, ऐसे मैं जान सकता हूँ क्या इस पर, सर आपने अभी प्रेजेंट की हुई है, अभी तो नहीं लिख सकती। आपने क्या किया, अभी प्रेजेंट की हुई है ना। ओके अभी नहीं लिखेगा, नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, खैर। तो जनरल बॉडी सरफेस जो है यहाँ पर आपको तो किससे होगा, टेल मेरे साथ हमेशा एक बार बोला करें आप, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थस, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. That means these are the very simple organisms. They don't have any specific structure. इनके पास कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। सो ये जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं। एक और बात, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करने के लिए जरूरी है कि एनिमल शुड बी एक्वेटिक। उस एनिमल को कहाँ रहना चाहिए, पानी में, एक्वेटिक होना चाहिए वो, समझे बच्चों। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन इट, एनी प्रॉब्लम, No, sir. Sir. No, sir. ओके दैट्स ग्रेट। ना आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड इज मॉइस्ट स्किन, है ना, मॉइस्ट स्किन जो है दैट इज क्यूटेनियस, है ना, थ्रू स्किन। तो क्यूटेनियस से कौन कौन, है ना, कौन कौन रेस्पायर करेगा इस तरह से रेस्पायर करेंगे, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग्स टोड्स, है ना, टोड आल्सो, क्लियर। आपने देखा होगा फ्रॉग्स की स्किन भी कैसे होती है, बहुत ही मॉइस्ट स्किन होती है फ्रॉग्स की, है ना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपसे कोई कहेगा कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो इससे आप क्या समझेंगे, बोले, इससे आप क्या समझ जाएंगे, Sir, respiration through skin. Moist skin. respiration through skin, very good, that's great। now tracheal tubes, तो tracheal tube से कहाँ होता है, बोलो। Sir, insects can be. Insects.
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं। आपको मालूम है, आपको पता है, आपने ऑर्थोपोडा पढ़ा होगा, फाइलम ऑर्थोपोडा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे आप बताएंगे क्या फाइलम ऑर्थोपोडा में ब्लड का कोई रोल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में? हम्म? No, sir. No, sir. नहीं है, नहीं है। तो एयर कैसे जाती है डायरेक्टली? Sir, tracheal tubes की मदद से। यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स। आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा डक्ट सिस्टम लगाते हैं ना, एसी का डक्ट सिस्टम जो लगाते हैं, तो एक एसी, बड़ा एसी जो है उसको बाहर रख देते हैं, समझे नहीं समझे, और उसकी डक्ट जो है वो हर रूम के अंदर ओपन कर देते हैं। देखा है ना आपने ऐसा, बड़े बड़े मॉल्स में ऐसा किया जाता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. दैट इज द डक्ट सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही क्या है, ट्रेकियल ट्यूब्स है। ट्रेकियल ट्यूब्स बाहर ओपन हो जाती हैं किससे? स्पाइरकल से। स्पाइरकल से एयर कहाँ आती है? बॉडी के अंदर, और हर एक पार्ट में एयर चली जाती है। देयर इज नो रोल ऑफ द ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। ओके, यू गेट इट? Yes, हेलो sir. बच्चों, समझ गए आप लोगों की टीम, जो आप लोगों का जो पूरा क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? हेलो बच्चों, आपकी टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर पता नहीं सर, कम ज्यादा होते रहते हैं। सर अभी ओके, बैच चल रहा है तो पता नहीं चल रहा। ओके ओके। तो ये आप लोगों का बैच हाउ ओल्ड इट इज? कब स्टार्ट हुआ था ये? Sir, actually ये दो बैचेस मर्ज हुए हैं। अच्छा, 2 बैचेस मर्ज हुए हैं। एक बाद में स्टार्ट हुआ होगा, और एक लाइक एक कुछ इस तरीके से Yes, अलग अलग sir. टाइम पे स्टार्ट हुए हो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, फाइन। सुनाओ, हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में? गिल्स, है ना? तो गिल से जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? ब्रैंकियल। उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम? ब्रैंकियल। Bronchial respiration. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्लियर? तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हम यूज करेंगे। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है? ये कहाँ होगा? किस में मिलेगा आपको? एक्विटिक ऑर्थोपोड्स, है ना? जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स होते हैं उनमें क्या मिलेगा आपको? टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स में क्या मिलेगा आपको? सर tracheal system. ट्रैकियल ट्यूब्स मिलेंगे, यस। और एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स में मोस्टली आपको, है ना, क्या मिलेगा? गिल्स। नॉट नेसेसरी के सभी में मिलेंगे, पर मोस्टली आपको क्या मिलेगा? गिल्स। ओके, तो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स में आपको गिल्स मिलेंगे। मोलस्क में आपको गिल्स मिलेंगे। आपने अगर मोलस्क का पढ़ा होगा, यहाँ पर गिल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पता है आपको? Tinidia. वाह, दैट्स ग्रेट, थिनीडिया। ओके, है ना? थिनीडिया। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बताओ ये? अगेन एनसीईआरटी में मेंशन है, किस तरह के दिखते हैं? Feather-like. Yes, they are the feather-like structure which help in the respiration Excretion. as well as excretion, and they situated in the which cavity? Mental cavity. Mental cavity. Mantle cavity. Very good, है ना? So mollusca में हमने Cnidia कहते हैं. They are situated in the mantle cavity, feather-like structure which help in the respiration as well as excretion. Okay? सर Fine. इसके नोट्स बनाने हैं? ओ बिल्कुल, नोट्स बनाओ। नोट्स तो बनाना ही होंगे आपको। आपको जहां पर भी आपको मुझे आप प्रेजेंटेशन बोलो, सी, हाँ, कहाँ से? प्रेजेंटेशन वाली सी। नहीं नहीं, आप नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, मैंने खुद ही बनाया हुआ नोट्स है ये। ऐसे कहीं का मैंने कट पेस्ट नहीं किया। आप देखोगे डायग्राम भी मैंने खुद ही बनाया है, सिर्फ मैंने टाइप किया उसको। सर अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में बना लेंगे। हाँ, बना लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लेके बच्चे, फिर क्लास जो होती है, जब आप नोट्स सामने बनाते हैं ना, तो क्लास जो है क्लास जैसी लगती है, वो एक ऑफलाइन का फील देती है। तो आप कोशिश करें कि नोट्स को आप लिखें। समझे मेरी बात? अभी आप ले लीजिए, लास्ट वाले का आपने स्क्रीनशॉट लिया, ले लीजिए, लेकिन आप लिखें। और उस नोट्स को हमेशा एक बात याद रखें कि नोट्स को आप जितना शॉर्ट एंड स्वीट बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। जनरली हम देखते हैं बच्चे नोट्स को बहुत ही बहुत लेंदी, बहुत वैसा बनाता है। आप शॉर्ट में आप लिखें, है ना? उसको इतना लिखें कि आपको समझ में आ जाए उसे। तो शॉर्ट में बनाइए, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए। कई बार क्या होता है कि टीचर्स ने कुछ बोला है, लेकिन
लेकिन हो सकता है लिख नहीं पाया, कुछ नहीं लिख पाया, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कुछ टर्म्स अगर हम यूज करते हैं तो वहीं पर उसको नोट कीजिए इमिडिएटली। एक अच्छा देखिए, स्टडी जो नोट से होती है ना, उससे अच्छी स्टडी किसी से नहीं होती। आप कोई मॉड्यूल ले लीजिए, कोई स्टडी मटेरियल ले लीजिए, जो नोट्स आप लिखते हैं, क्योंकि टीचर जब आपको पढ़ाता है तो, क्योंकि टीचर भी तो कहीं से पढ़ा ही होगा ना, तो वो बहुत सारी बुक्स से लेकर एक एक्सट्रैक्ट निकाल के जहाँ जो बेस्ट है वो आपको दिखाता है, वो आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, समझ में आया आपको बात मेरी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, तो लंग्स जो है ना, ओके, तो समझ में आएगा। तो गिल से आपको कहाँ मिलेगा? गिल से जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ब्रांकियल। और ये आपको कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स में, मोलस्क में और फिशेस में। ओके फाइन। Yes, sir. Yes, sir. नाउ लंग्स जो है, लंग्स से जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी। वी कॉल इट Pulmonary respiration. pulmonary respiration. Okay, we call it pulmonary respiration. अब pulmonary respiration जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में और एम्फीबियंस भी। बिगनिंग में लिख लीजिएगा, एम्फीबियंस में भी होगा। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, यहां पर आपको मिलेगा पाल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आपने इतना लिखा आपने, यहाँ आपको कोई डाउट है यहाँ तक? सर हाँ बोले। सर जो एसके हेलमिंथस होते हैं उनमें भी मॉइस्ट स्किन से ही होता है रेस्पिरेशन? नहीं, मॉइस्ट स्किन क्या, उनकी ऐसी कोई स्किन नहीं होती। देखिए, स्किन वगैरह हम टर्म यूज करते हैं अर्थवॉर्म वगैरह से, इनकी कोई स्किन नहीं है। इट इज जस्ट अ बॉडी सरफेस। स्किन एक अलग चीज हो जाती है ना। तो उनकी वो एक बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल से ही होगा। लेकिन पैरासाइटिक जो होते हैं उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, याद रखें। ऐसे प्लेटी हेलमिंथस हैं, इनमें भी पैरासाइट्स होते हैं, आपने सुना होगा। यस सर। नहीं समझे? अगर पैरासाइट होंगे तो उनमें कैसे होगा? एनएरोबिक। यस, ऐसे ही एस्केलमेंथीज जो है, हाँ एस्केलमेंथीज मैंने, एस्केलमेंथीज जो है यहाँ पर भी अगर पैरासाइट है तो कैसे होगा? एनएरोबिक। अगर वो है तो जनरल बॉडी सरफेस से होगा। आपको दिख रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. हम्म तो जनरल बॉडी सरफेस से हो। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस। सो एस्केलमेंथीज के अंदर भी है ना पैरासाइटिक है तो कैसे होगा? एनारोबिक। और अगर फ्री लिविंग होंगे तो कैसे होगा? फ्री लिविंग समझते हैं ना आप लोग? फ्री लिविंग यस सर। ना, फ्री लिविंग लाइक वो एक्वेटिक होंगे, फ्रीली, है ना, दे आर फ्रीली मूविंग, है, किसी की बॉडी पर वो अटैच नहीं है किसी से। ठीक है, तो उन्हें हम फ्री लिविंग कह रहे हैं। और ये इनमें कैसे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, आपने अभी डायग्राम मुझे आपको बनाना है। ह्यूमन, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब कि हमने जनरल बात की, यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन, अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा और बताना है आपको, है ना। मैं ह्यूमन का, आप अभी हेडिंग मत डालिएगा, इससे पहले मैं कुछ आपको और बताता हूँ। बताएं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट मिनट, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेट भी हम देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, बस ये आपको बॉटनी में बताया जाएगा।
द बेसिस ऑफ सबस्टेट, बॉटनी में हो गया आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। No, sir. No, sir. टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट, है ना, सबस्टेट के बेसिस पर भी टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। देखें, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ओके, यू हर्ड अबाउट दैट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? No, sir. आपने सुना? ओके, No, नो sir. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अच्छा, एक बात बताएं, अगर आपकी आपकी बॉडी के अंदर, आप मुझे देख पा रहे हैं ना बेटा, आई एम विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes. अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। तो एक बात बताएं आप कि हम रेस्पिरेशन में क्या यूज करेंगे, पहले पहले क्या यूज करेंगे फॉर द एनर्जी? भाई रेस्पिरेशन का The मतलब क्या है? एनर्जी, carbohydrate. Sir, Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। तो यानी हम ऊपर की चीज का, ऊपर यानी रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। तो फ्लोटिंग मींस, फ्लोट करना मींस ऊपर, नहीं समझे? Yes, sir. है ना? तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो है, when the respiratory substrate is, when the respiratory substrate is Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। समझे नहीं समझे मेरी बात? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? कार्बो, वन रेस्पिरेटरी is कार्बोहाइड्रेट। समझे आप? नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए सर। क्लियर हुआ? Sir, समझ गए। क्लियर हुआ? सर यस नहीं हुआ। सर। Yes, sir. ओके, नाउ सर लिसन। हाँ बेटा। सर नहीं आया समझ में मुझे। अच्छा, नहीं आया समझ में, कोई प्रॉब्लम, आएगा, डोंट वरी। अच्छा, एक बात बताओ, फ्लोट मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर रहे वही तो फ्लोट करता है ना बेटा? फ्लोट, यस फ्लोट करना, तैरना। तो तैरना मतलब ऊपर, ऊपर रहना। समझ गए? यस तो सर। जब हम जो खाना, जो हमारी बॉडी जो है ब्रीथिंग के मतलब ऑक्सीडेशन के लिए यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसको प्रेफर करती है, किससे प्रेफर करती है? क्या, ग्लूकोज को। किससे हमें एनर्जी मिलती है? एनर्जी फूड क्या होता है, आप बताओ, एनर्जी के लिए हम क्या खाते ग्लूकोज। हैं? जो ग्लूकोज, ग्लूकोज तो खाते हैं। अब तुम ग्लूकोज खाते रहते हो क्या हमेशा सर एनर्जी के मतलब लिए? सर फूड खाते हैं जिसमें ग्लूकोज मतलब अच्छा, फूड कार्बोहाइड्रेट। खाते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज तो फूड में नहीं होता बेटा। कहाँ होता है फूड में ग्लूकोज? होता है क्या? मतलब उससे ब्रेक राइस, डाउन होता है। तो ब्रेकडाउन के बाद बनता है, लेकिन हम खाते क्या है? खाते तो कार्बोज है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस खाया, चपातीस खाई, तो उनमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यस सर है। तो जब हम रेस्पिरेशन, जो ऐसे समझ लें, देखिए, मैं थ्री लाइंस फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हो, थ्री लाइंस बना रहा हूँ, ओके, क्लियर? तो ये कार्बोज है, ये कार्बो है, और ये लिपिड है, और यहाँ पर ये प्रोटीन है। समझ गए आप? यस सर। तो सबसे ऊपर फ्लोट कौन कर रहा है यहाँ पे, यानी जब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन सबसे पहले किसको यूज करेगा और एनर्जी के लिए? हाँ हाँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को। यानी अगर अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज हो रहा है इसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। सरफेस की चीज यूज हो रही है, ऊपर की चीज यूज हो रही है, जैसे होना चाहिए यूज, सरफेस पे ऊपर है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि पूरी कार्बो। तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ओके सर। नहीं समझे? जब तक आपको समझ में नहीं आया, आपको ओके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर आ गया सर समझ में। आ गया? अब आइए नेक्स्ट देखें तो, फिर इसी, है ना, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन।
प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म मीन्स डीप, अंदर, अंदर की तरफ, यानी जिसका जनरली हम यूज नहीं करते, जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, अगर उसका यूज होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अंदर की चीज का का यूज होने लगे, लाइक इनमोस्ट चीज का यूज होने लगे। नहीं समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? सर हेलो बच्चों, प्रोटोप्लाज्म तो सेल के अंदर का होता है ना। हाँ सेल के डीप में होता है ना प्रोटोप्लाज्म, अंदर होता है ना। यस सर। तो डीप की चीज, अंदर की चीज यूज होने लगे, जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज नहीं होती, जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज नहीं होती, अगर उसका यूज होने लगे तो क्या सर होगा? जैसे कि प्रोटीन। यस, प्रोटीन। अगर प्रोटीन का यूज आपने देखा होगा, आपने आपने सुना है जब लोग प्रोलॉन्ग फास्ट करते हैं तो बहुत लंबा, जैसे जैसे सुना है आपने ना, फास्ट प्रोलॉन्ग फास्ट करते हैं तो आपको मालूम है, आपने देखा होगा उनके हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं, बिल्कुल लीन एंड थिन बॉडी हो जाती है, देखा है आपने कभी? यस बहुत सर। मसल्स वीक हो जाती है, उनकी मसल्स वीक हो जाती है। किसी के बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, अगर कहीं आपके पेरेंट्स वगैरह की वॉइस आ रही है तो म्यूट करें अपने आप को, ठीक है? मैं क्या आप हेलो बच्चों, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन एंड आप Yes, हेलो, sir. Yes, sir. एंड यू आर गेटिंग और नॉट, यू आर गेटिंग और Yes, नॉट? sir. या तो प्रोटोप्लाज्मिक का मीनिंग क्या है कि डीप, मतलब जिसका यूज नहीं करते। आप प्रोटीन का यूज हम किस में करते हैं? बॉडी बिल्डिंग में। प्रोटीन इज नॉट द एनर्जी मटेरियल। हम प्रोटीन इसलिए नहीं खाते इस समय एनर्जी मिलेगी, हम प्रोटीन क्यों खाते हैं? इट इज अ बिट फॉर द बॉडी बिल्डिंग। समझे नहीं मेरी बात आप? तो है ना, हम किस लिए खाते हैं? बॉडी बिल्डअप के लिए, मसल्स बिल्डअप के लिए। ओके, यस सर। हेलो। Yes, लेकिन sir. लेकिन अब अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ना रहे तो फिर बॉडी को प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? ग्लूकोज। ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। समझे मेरी बात? और ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी की प्रोटीन्स अगर यूज होने लगे एनर्जी प्रोडक्शन में, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। समझे मेरी बात? लेकिन अगर नहीं है यस तो सर। करना पड़ेगा, कम से कम जिंदा रखना है आपको। तो व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, प्रोटीन। Protein. yes, when the respiratory substrate is protein. Okay, आइए देखें, तो लिखें यहाँ पे, when the respiratory substrate is protein. Fine बच्चों, यस Yes, sir. यस सर। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर? Anything, if No, anything sir. is there, please tell. No, sir. सर ये सबस्ट्रेट क्या था? क्या बेटा? सबस्टेट, सबस्टेट मीन्स, सबस्टेट मतलब, सबस्टेट मीन्स जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड पदार्थ, सबस्टेट कंपाउंड। आप अच्छा, आप लोग ये बताइए, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? बस सर इंग्लिश मीडियम। एवरीवन? इंग्लिश Yes. मीडियम। यस सर। Yes, sir. ओके, तो सबस्टेट समझते हो, सबस्टेट समझते हैं ना आप? सबस्टेट मींस काइंड ऑफ रिएक्टेंट। हेलो, Yes. Yes, हाँ sir. बेटा, समझे बच्चे? यस ओके, आई Yes, कैन sir. स्पेल। ओके, सर हाँ बच्चे। सर अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए बॉडी में तो फिर लिपिड्स यूज होते हैं ना, वो उसके लिए एनर्जी यस, के लिए। यस, कार्बोहाइड्रेट देन लिपिड एंड एट द बिल्कुल लास्ट में क्या यूज होगा? प्रोटीन। प्रोटीन। यस, ओके। समझ गए बेटा? सर अगर हाँ, लिपिड्स यूज हो रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है रेस्पिरेशन नहीं के नहीं लिए? हम फ्लोटिंग में यूज करेंगे उसको भी, लिपिड्स को, लिपिड्स को हम फ्लोटिंग में ही यूज करते हैं, क्योंकि वो भी एनर्जी के लिए ना, लिपिड से कोई बॉडी बिल्डअप नहीं करता ना, तो कार्बोज एंड लिपिड दोनों ही उसी में आते हैं, तो हम लोग लिपिड्स को भी फ्लोटिंग में ही यूज करेंगे, ठीक है? यस सर। सर यस, सर जब प्रोटीन यूज होने लगेंगे तो बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो भी बढ़ जाएगी ना,
एनएस वीक होती है, वो यूरिया टोटली का वीक बनना है। बढ़ जाता है, यूरिया का बनना बढ़ हाँ। जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, तो यूरिया का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है। ओके, मसल्स बिल्कुल वीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मसल्स बिल्डअप होना बंद हो जाता है ना, क्योंकि जो जो आपको बॉडी बिल्डअप करना होता है वो एनर्जी में यूज हो रहा है, समझे। यस सर। हम्म, हुआ बेटा क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, सो अब आपको हेडिंग डालना होगी, क्या क्या हेडिंग डालेंगे अब आप? ह्यूमन सर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस। हाँ बच्चे, सर कोई कुछ जो बोल रहा है? जनरल बॉडी सरफेस यूज होती है रेस्पिरेशन हाँ, के लिए, वो सिर्फ एक्वेटिक मीडियम में ही क्यों होती है? मतलब एयर एयर में क्या लिमिटेशंस होती अच्छा हैं ऐसी कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी यूज नहीं कर पाते? अच्छा, आप बताइए, अ, आप एयर को कैसे डिफ्यूज करेंगे? अगर आपकी बॉडी में एयर कैसे डिफ्यूज होगी? अगर आप जनरल बॉडी सरफेस से कर रहे हैं आप, तो एयर कैसे आएगी आपकी बॉडी में? डिफ्यूजन कैसे होगा? कैसे होगा? कोई चीज आपकी बॉडी के कांटेक्ट में होनी चाहिए ना, एयर, तभी तो, जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में होनी चाहिए। और आपकी जो स्किन हो वो कैसी हो? बहुत ही फाइन, जिसमें डिफ्यूजन, आपकी स्किन का मतलब जो आपके आउटर वॉल है बहुत ही फाइन हो। अगर आप लैंड पे रहोगे तो आप उतनी सॉफ्ट स्किन लेके नहीं घूम सकते, नहीं समझे। यस सर। अगर आप जेली फिशेस को लैंड पे ले आइए तो क्या होगा बेचारी जेली फिश का? सर मर हेलो। जाएंगी। तो वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। है ना, तो बहुत, क्योंकि वो एक्वेटिक है, बहुत ही डेलिकेट एनिमल्स होते हैं, उनकी उनकी जो उनकी हम स्किन भी नहीं कर सकते। वो बॉडी एक्चुअली इंटरनल जैसे बॉडी सॉफ्ट है, वैसे उनका एक्सटर्नल पार्ट भी है। आप जेलीफिश को हाथ में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल जैसे हमारा हार्ट हाथ में रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे है, समझे। तो इसीलिए आप अगर उस तरह का मॉइस्चर, उस तरह की सॉफ्टनेस आप तभी रख सकते हैं ना जब आप किसी फ्लूइड के अंदर होंगे। यस अगर आप सर। लैंड पे आ जाएंगे तो आपको अपनी स्किन को ड्राई करना पड़ेगा, समझे मेरी बात। तो यानी ड्राई स्किन में फिर वैसे डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन की? डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर? ओके सर। ओके, सो नाउ टेक अ हेडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पर। हेड किया बेटा आपने? हेडिंग ली? यस सर। ओके, अब, ओ सॉरी, अभी आप एक्चुअली किस जगह पर हैं? क्या आप कहाँ पे, क्या किया अभी आपने? सर ये जितना आपने लिखवाया वो लिख लिया, उसके बाद फिर हेडिंग डाल दी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नाउ ड्रॉ द डायग्राम। आप बना रहे हैं क्या डायग्राम? सर अब बना रहे Yes, हैं। sir. ओके, बनाइए। और यहाँ पर मैं एक कट लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर, कट, कट एंड ऑफ द रिब्स, जस्ट मिनट। आपका डायग्राम हो जाए तो मुझे इंटीमेट कीजिए।
डन बेटा। सर बस 2 मिनट और। यस सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो। सर हो गया। ओके, सो इस डायग्राम को मैं एक बार एक्सप्लेन करूं आपको, देन हम लोग चलेंगे, है ना। सो जो डायग्राम विजुअल है वो मैं एक बार बताऊं आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एपिग्लॉटिस है। देखा ये एपिग्लॉटिस? हम्म, एपिग्लॉटिस। यस सर। हाँ, ये एपिग्लॉटिस जो है, मैं ऐसे कहता हूँ, इट इज अ ढक्कन। ये क्या है? इट इज अ ढक्कन। किसका ढक्कन है ये? सर विंड पाइप का। मीन्स इट्स अ ढक्कन ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स, ट्रैकिया, एक ही बात है। ट्रैकिया का ऊपर वाला जो पार्ट है, दैट इज द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स ट्रैकिया एक साथ ही है ना। तो ये लैरिंग्स यस पर सर। है, लैरिंग्स पे है। तो इसको ऐसे कवर करके रखता है, ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स को बंद करके रखता है। देन ट्रैकिया है, हम सब बात करेंगे इनके बारे में। ट्रैकिया आपको दिख रही है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं है, आप बोलना चाहता हूँ तो है ना। ट्रैकिया में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, सी शेप रिंग्स है, दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर सी के शेप के रिंग्स है, समझे? हेलो। यस सर। तो यस ये जो सर। सी शेप रिंग्स होते हैं ट्रैकिया में, ये क्या है, क्यों है ये रिंग्स ऐसे? सर जिससे कि विंड पाइप ताकि वो कोलैप्स कोलैप्स ना ना हो। करे। यस, ये आपको मालूम है, आपने टिश्यूज में पढ़ा होगा, मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। किसके बने हैं ये? हाइलाइन कार्टिलेज, है ना। मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हेलो बच्चों। यस सर। Yes. Yes, यस sir. सर। हाँ, किसके बने हैं ये? हाइलाइन कार्टिलेज के, समझे? यस सर। और लिसन, ये टेकिया को नॉन कोलैप्सिबल बनाते हैं। दैट मीन्स कि चाहे एयर अंदर रहे या ना रहे, टेकिया हमेशा कैसे रहेगी? ऐसे। नहीं समझे? सर हेलो समझ गए। बेटा, है ना। अच्छा, एक बार बताइए, ये डॉर्सल साइड में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? डॉर्सल साइड में मिलेगा क्या ये रिंग्स? बोलो बेटा। सर विंड नहीं, पाइप में ट्रैकिया में तो होगा। मैं कह रहा हूँ कि डॉर्सल साइड में मिलेंगे क्या ये? डॉर्सल साइड में? यस सर। नो, दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, टुवर्ड्स वेंट्रल साइड, नॉट डॉर्सली। ये सी शेप के, इसीलिए तो सी शेप कह रहा है। ये हाफ है, बस इस तरफ होगा, उस तरफ नहीं होगा, या नहीं होगा। नहीं समझे बेटा? सर समझ गए। सर एक बार बताना कैसे। लुक लुक हियर, आप मुझे देख पा रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा हूँ। सो क्योंकि वो प्रेजेंट किया हुआ स्क्रीन तो कुछ दिख नहीं रहा। जूम पे क्या होता है, कॉर्नर पे वो दिखता रहता है, तो मुझे समझ में आता है कि मैं जैसे दिखा रहा हूँ वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मुझे पता नहीं कि आपको मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरे तो हैंड आपको सर आप कैसा दिख। मोबाइल से भी कर लो ना ज्वाइन। तो मोबाइल से ये लिखते हुए बनेगा क्या? वो मोबाइल में जो टैब है ना, टैब नहीं बनता है सही से। सर आप दिख सर रहे हो। आप हाँ, क्या बोलो? सर आप दिख रहे हो। हाँ, सर मैं तो दोनों दिख से रहा हूँ। ज्वाइन, सर एक यस। साथ दोनों से ज्वाइन कर लीजिए, एक से सर अ, दिख जाएगा फिर। अच्छा, यस एक सर। साथ मोबाइल से ऐसे दोनों से ज्वाइन कर सकते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है, मैं करता हूँ। जस्ट मिनट। ओके, चलिए, जब तक क्या हम लोग करते हैं, जब तक हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए,
मेरा कहने का मतलब है ये ऐसी, अब दिख रहा है आपको, ये पीछे ऐसा है, ये आगे ऐसे यस रहेगा, सर। पीछे ऐसा रहेगा, दिख रहा? ऐसा नहीं दिखा? अच्छा, नहीं दिखा? पीछे दिख खाली रहा है, है सर, पीछे दिख रहा कुछ है। नहीं है, पीछे कुछ नहीं, इससे आगे है, आगे। अच्छा, नहीं और सर समझे? जब इस पे प्रेशर प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये दोनों आपस में नहीं आ जाएंगे, पास पास डोर्सल साइड वाले? ये ऐसे, ऐसे तुम क्या कह रहा है, ये दोनों ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे बोल रहे हो क्या? प्रेशर पड़ेगा, यस ऐसे सर। चिपक जाएंगे? नहीं तो पीछे भी टिश्यूज है ना, कोई ट्रैकिया कोई ऐसा थोड़ा ना कि नाइफ की तरह पॉइंटेड थोड़ा ना, ट्रैकिया भी तो अगर आप, वो कार्टिलेज है ना, फोल्ड फोल्ड हो सकते, हो जाएगी वो थोड़ा सा। नहीं समझे? वो ऐसा थोड़ा ना कि नाइफ है तो ऐसे जाके सीधे घुस ही जाएगा, वो तो फोल्ड हो जाएगा ना अपनी जगह पे। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि वो जाके आगे खिसक जाएगी, वो तो टिश्यूज में पैक्ड है ना वहां पर। नहीं समझे हम्म। आप मेरी बात? मतलब ऐसा थोड़ी ना अच्छा, है कि वो ऐसे कोई ऐसे ऐसे लकड़ी की तरह ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो टिश्यूज के अंदर बंद है। नहीं समझे आप मेरी बात? नहीं सर। एक मिनट, एक मिनट। सर वो ट्रैकिया की वॉल पे अटैच्ड है ना? हाँ वो तो वॉल से अटैच्ड है ना, मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे। एक्चुअली इसमें कोड वोड मांग रहा है, पता नहीं, मोबाइल में मैंने किया, कोशिश किया, कोड मांग रहा है, तो चलो ठीक है, बाद में करते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप क्या बोला कि ये दोनों रिंग्स ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे अगर दबाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा? यस सर, जब प्रेशर पड़ेगा तो नहीं मिल ही जाएंगे। नहीं नहीं, तो प्रेशर पड़ेगा तो हाँ वो ऐसे होगा ना, तो पूरा पूरा कुछ पूरा ही होगा ना, तो अगर आप बहुत दबाओगे तो इतना जब वो कोलैप्स हो जाएगा तो आदमी निपट जाएगा, स्ट्रैंगुलेशन उसी को तो कहते हैं, स्ट्रैंगुलेट कर जाएगा। अच्छा। नहीं समझे मेरी बात? आप दबाओगे, अगर मिल जाएगा तो वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया तो स्ट्रैंगुलेट करेगा, दम घुटेगी उसकी, सफोकेटेड फील करेगा। और ज्यादा दबाओगे तो वो चला जाएगा। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया, यस आप सर। चाहे तो आप थोड़ा दबा के देखिए अपनी, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा दबाइए, दबाइए। सर ज्यादा दबा लिया तो ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। ज्यादा मत दबाओ। ओके, समझे मेरी बात? सर यस हम्म। सर, समझ समझ गए। गया। ओके। नाउ ये देखिए, ट्रेकिया जो है क्या हो गई, ये बाइफकेट हो जाती है ट्रेकिया। ओके, देखिए आपको बाइफकेट हो गई, किसके अंदर चली गई ये? लंग्स के अंदर। क्या क्या फॉर्म करके चली गई ये? क्या बन के चली गई? प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी बॉन्कस। है ना? हम सिंपल अभी ब्रोंकस कहेंगे, अभी हम सब पढ़ेंगे वन बाय वन एवरीथिंग, नाक से लेके नीचे सब कुछ पूरा लंग्स पढ़ेंगे, तो अभी तो मैं ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये देखें, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे बाइफरकेट हो गया, किसमें? ब्रोंकस बन के, क्या बनकर? ब्रोंकस। क्लियर हुआ? यस समझे? सर। हाँ। अब देखें आगे, अब ये अंदर बाकी ये अंदर वो फर्दर ट्री ब्रांचिंग होगी है ना, ये फर्दर ब्रांचिंग आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ये इसमें देखेंगे, देख रहे हैं आप, तो देखेंगे। अब आप देखेंगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मैंने ये जो बनाया है ना यहाँ पे ऐसे टिल्ट किया हुआ है, ये टिल्टेड ऐसा ही होता है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं बनाया है, ये थोड़ा सा सीधा है, दिख रहा है आपको? ये सीधा सीधा है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, देखा आपको ऐसे बेटा? यस सर। यस सर। है ना? हाँ वो थोड़ा इरेक्ट है। अगर किसी बच्चे ने, समझ लो, कुछ चीज खाई और वो उसके लंग्स में चली जाए, मीन्स उसको ठसका लग जाए, ठसका लगना समझते हो ना, जब सोलो करते समय कुछ लंग्स में चला जाए तो ठसका यस ऐसे सर। लगता है, खांसी आती, खांसी, कॉफिंग। हम्म। तो मेरा यस कहने का सर। मतलब, अगर कोई बच्चा कुछ खा ले और वो अगर चला जाए तो किस लंग्स में वो सबसे पहले जाएगा, बता सकते हो? सर किस हमारे लंग्स वो में? राइट लंग में। राइट लंग। राइट लंग में क्यों जाएगा? राइट लंग में बताओ। क्योंकि सर उसका प्राइमरी बॉन्कस वाइड है। या वाइड नहीं कहेंगे, इट इज क्वाइट स्ट्रेट इरेक्ट, है। स्ट्रेट है, वो सीधा है, स्ट्रेट है, दैट्स वाई। समझे मेरी बात? यस इसलिए सर। जनरली आप देखोगे, कभी भी आपने ये नोटिस करेंगे आप, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो राइट लंग के अंदर होता है। समझे आप? यस सर। यस। आइए जरा देखें, तो यहाँ पर तो ये क्या है, फिर भी फर्दर ब्रांचिंग होगी, ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये लंग्स आप देख ही रहे हैं, है ना? सर लंग्स जो है, हाँ बेटा बोलो।
सर ये आपने पॉइंट बताया था वाइड स्ट्रेट वाला, जो आपने बताया, एक बार और बता दीजिए इसे। ओके ओके। कोई भी इन्फेक्शन अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ जाता है अंदर, तो मैंने कहा था आपसे कि वो सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो कहाँ जाने के होते हैं, राइट लंग में। क्योंकि राइट जो ब्रोंकस है ना, वो कैसा है, स्ट्रेट है। तो कोई भी चीज लुढ़क के जब कोई भी यहाँ पे जब आएगा कुछ रोल करते हुए, है ना, तो वो सीधे जाने के चांसेस कहाँ है उसके, यहाँ से आएगा तो वो तो टिल्टेड है, तो वहां पर जाने के बजाय वो ऐसे टकराएगा और यहाँ आ जाएगा। इसलिए कुछ भी इन्फेक्शन जो होता है वो सब ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होंगे, राइट लंग्स में। समझे आप मेरी बात यस बच्चे? सर, क्लियर है। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। ओके। हम चलें कि आगे? यस सर। सर ठीक है, चलिए। हाँ बेटा बोले। सर जो ट्रैकियल रिंग्स होती है वो इनर वॉल पे होती हैं, आउटर वॉल पे होती हैं? इनर वॉल आउटर वॉल मींस? सर मतलब वो ट्रैकिया के इनर वॉल पे होती हैं, आउटर वॉल पे? अरे जाहिर सी बात है आउटर वॉल पे होंगी, सर है ना? ठीक है, और बोलिए। चलें, हम आगे चलें क्या? यस सर। Yes, sir. ओके। ना वहां पे हम क्या देखते हैं, देखिए। तो ये लंग्स आपको पता है, लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरेसिक कैविटी में, एंड इंक्लोज्ड है किससे, प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लेट में। प्लूरल किसमें इंक्लोज्ड है, कैविटी में, प्लूरल कैविटी में, प्लूरल किसमें, कैविटी। प्लूरल कैविटी में। समझे मेरी बात? तो किस पे सिचुएटेड है, थोरेसिक कैविटी में, इंक्लोज्ड है किसमें, प्लूरल कैविटी प्लूरल में। कैविटी में। ओके। और यहाँ पर दो मेम्ब्रेन आपको मिलेंगी, देखें, ये बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये अंदर की प्लूरल मेम्ब्रेन। समझ गए? हेलो बेटा, यस सर। सर यस सर। है सर ना? ये जो तो प्लूरल कैविटी है ये किसको कहा हमने मतलब? ये जो जगह है ना खाली, देखो बीच में ये जो जगह है ना, ये, जहाँ पर ये प्लूरल फ्लूइड है। यस यस यस। अच्छा वो समझे? प्लूरल कैविटी। अच्छा यस। अच्छा। यस सर। क्लियर? सो समझ गए आप? सर थोड़े से यस सर क्या समझ। आपने? तो थोड़ा से कैविटी नहीं पता आपको? थोड़ा से कैविटी नहीं मालूम है? सर थोड़े से कैविटी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम मतलब कहाँ होती है, कैसे प्रेजेंट होती है? अच्छा, कहाँ होती है? अच्छा, थोरेसिक कैविटी मीन चेस्ट कैविटी। ये जो रिबकेज है ना, रिबकेज, यस सर। रिबकेज है ना। हेलो। यस सर। अच्छा, मैं एक दिखाता हूँ आपको, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, एक एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। एक फोटो इंसर्ट करता हूँ, देन मैं, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट। ये दिख रहा है, चेस्ट कैविटी दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने एक शेयर किया आपको, उसी के बीच में दिख रहा है आपको ये। यस सर। यस सर। तो ये जो है चेस्ट, चेस्ट जो रिब के अंदर होता है ना, दैट इज अ थोरेसिक कैविटी। रिब के अंदर है, रिब के अंदर। हाँ मैं देख रहा है, आप यहाँ मुझे देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये जो पार्ट है, Yes, sir. ये जो पार्ट है ना, दिस इज, यहाँ पे ये है थोरेसिक कैविटी, चेस्ट, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, जहाँ रिब के पूरा रिब्स हैं। ओके सर। इस थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से कौन सेपरेट करेगा, डायफ्राम। डायफ्राम देखो, ये डायफ्राम दिख रहा है आपको, देखें, ये डायफ्राम है, दिस वन इज द डायफ्राम। नहीं समझे? ये यस सर। डायफ्राम है। समझे बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। ओके, जस्ट अ मिनट।
यहाँ आपको कोई इसमें हाँ आप देखें तो ये आप समझ में आ गया ना थोड़ा सी कैविटी। यस सर। तो एक बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कौन सी, बाहर वाली को क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली है इसको क्या कहेंगे, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। नहीं समझे, नहीं समझे? समझ गए सर। समझ यस गए सर। यस, इन दोनों के बीच में भरा हुआ है क्या, प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड। ओके, इनका क्या काम है और ये सब हम लोग अब बात करेंगे आपसे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। अब आप देखेंगे कि जो राइट लंग है वो कहाँ है, किस तरफ है, ऊपर है थोड़ा कि नीचे है? राइट लंग ऊपर है या नीचे है? सर इसमें तो ऊपर। सर आप नीचे अपना सोच के बताइए, आप खुद ही बताइए, अपनी बॉडी को देख के बताइए कि राइट लंग जो है उसे ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? सर नीचे होना चाहिए लीवर की वजह से। अच्छा, लिवर की वजह से नीचे होना चाहिए, तो लिवर ऊपर की वजह से नीचे क्यों होना चाहिए? सर ऊपर लिवर होना ऊपर है क्या? चाहिए। सर ऊपर होना नहीं चाहिए। सर एक मिनट। सर ऊपर होना चाहिए। राइट। हाँ सर हाँ, सर कहाँ जो होना ये चाहिए? राइट सर जो ये राइट वाला राइट की तरफ हमारा लीवर होता है तो सर उसके वजह से वो थोड़ा लेफ्ट वाला थोड़ा नीचे की तरफ होगा, राइट वाला थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। यस, वेरी गुड। तो राइट, यहाँ पे राइट साइड में लिवर है, और लिवर लिवर को क्या जो है ना, लंग, राइट लंग को थोड़ा सा ऊपर उठा देगा। और इसी और सेम थिंग ये है कि उसी किडनी को कहाँ कर देगा, थोड़ा नीचे। यानी राइट किडनी थोड़ा नीचे होती है, राइट लंग थोड़ा ऊपर होगा। नहीं समझा आप मेरी बात? यस सर। यस सर। समझ गए। ओके, तो हाँ, तो राइट लंग जो है दैट इज क्वाइट अबव इन पोजीशन, थोड़ा सा ऊपर है पोजीशन में। समझ गए? ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ये हम बात करेंगे लंग्स में, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, आप बस देख लें। ये ब्रॉड है, समझ गए? क्लियर? अभी यस अपन सर। इनके लोब वगैरह सब पढ़ेंगे कि इसमें लोब्स भी होते हैं। और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग कैसा है, थोड़ा नीचे की है ना, थोड़ा है ना, डाउन इन पोजीशन, लोअर इन पोजीशन। और ये कैसा है, थोड़ा लाइटर है, हल्का होता है और थोड़ा थिन है, नैरो है। और आपने देखा होगा यहाँ पर इसमें क्या है, क्या है, ये जो जगह है यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कार्डियक नॉच। क्या मिलेगा आपको यहाँ, कार्डियक नॉच। नहीं समझे? एक डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन है राइट लेफ्ट लंग के अंदर। क्यों? हार्ट आपको पता है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हार्ट है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए आपको वहां पे क्या मिलेगा, अ डिप्रेशन। उस डिप्रेशन को क्या कहेंगे हम, कार्डियक नॉच। नहीं समझे आप कहें तो मैं एक अलग से डायग्राम बना के बताऊं आपको? सर समझ नो गए। सर। सर समझ सर गए। समझ गए। सर एक बार और ओ, बता दीजिए। हाँ हाँ बताता हूँ बेटा, बताता हूँ जस्ट। हाँ बोलो, क्या बताऊं? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो जो हार्ट होता है वो किस तरफ झुका होता है, लेफ्ट। लेफ्ट की साइड। लेफ्ट की साइड में, है ना? कहाँ झुका होता है, लेफ्ट की साइड में। तो इसलिए लेफ्ट लंग के अंदर एक छोटा सा क्या होगा, डिप्रेशन होगा, उसको कहते हैं नॉच। नॉच का मतलब से जिसे कहते हैं ना खांच, खांच समझते हैं ना, खांच, खांच ऐसा जिसमें फिट है वो, फिट ऐसे, ऐसे ए लंग, ए हार्ट, ऐसा। नहीं समझ मेरी बात? हेलो बेटा? समझ गए सर। सर समझ सम गए सर। ओके, अभी ये बच्चा जो बोल रहा था वो समझ गया? यस सर। ओके, है ना? और ये दो लंग के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं पता है आपको? उस स्पेस को हम कहते हैं मीडिया। ये जो स्पेस है, स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टिनम। क्या कहते हैं इस स्पेस को, मीडिया स्टिनम। द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड मीडिया स्टिनम, जिसमें क्या रखा हुआ है, जिसमें हार्ट रखा हुआ, इसमें हार्ट रखा हुआ। जिसमें हार्ट रखा हुआ। क्लियर? ओके। यस सर।
यस यस। और ए डायफ्राम है, डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर डायफ्राम नहीं होगा तो आप ब्रीथ नहीं कर सकते, है ना। ब्रीदिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर हम कहेंगे, मतलब अदर देन द लंग्स, तो वो क्या होगा? डायफ्राम। समझ गए? और डायफ्राम किसको सेपरेट करता है? इट सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी विद विद एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो ये थोरेसिक कैविटी को नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे क्या करेगा? सेपरेट करेगा। समझ गए आप बच्चे? यस सर। यस सर। आपको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर हम्म सर जब हार्ट बीट करता है और जब लंग्स अपना मतलब काम करता है, तो सर दोनों एक दूसरे को मतलब इंटरप्ट नहीं करते? ओ बेटा, ऐसे थोड़ा ना हो रहा है कि वो टकरा रहे हैं बहुत बुरी। इट्स क्वाइट वेरी सॉफ्ट डेलिकेट कॉन्टैक्ट है ये। ऐसा थोड़ा ना ऐसे ठक 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 ऐसे हो रहा है उसमें। वेरी सॉफ्ट। और कोई लंग्स में कोई ऐसे बहुत, वो तो स्पॉन्जी है, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह है। समझे मेरी बात? तो वो कोई ऐसा नहीं है कि सर हार्ट में ऐसी कोई हार्ट की बीट हो रहा है कि सब हार्ट ने पूरा से दब वो हो गया, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। उतना कोई हार्ट कॉलिजन्स थोड़ी ना है उनके बीच में। नहीं समझे आप मेरी बात? यस सर। यस सर। ओके, चले हम आगे बेटा। यस हम्म सर। ओके यस सर। ओके फाइन। नाउ देखें, अब हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, ठीक है। अब हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। इट तो इट इज सिस्टम जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। किससे बना हुआ है ये? रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एक तो पाथ है और स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स है। समझे नहीं समझे? और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर वन पेयर ऑफ लंग्स। ओके, क्लियर। यस सर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये क्या है? दे आर पेयर ऑफ लंग्स। ओके फाइन। यस सर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस पैसेज। तो रेस्पिरेटरी जो पैसेज है यानी ट्रैक्ट है, कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम, लुक हियर, दीज आर नेजल द, पैसेज। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं आपको? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्टिल्स। लेकिन ये कौन से नॉस्टिल्स हैं? बाहर के या अंदर के? क्योंकि ये सर अंदर बाहर भी के। खुलेंगे। तो ये External. एक्सटर्नल नॉस्टिल्स है यानी एक्सटर्नल नेयर्स। और ये आपको मालूम है फेरिंक्स में भी खुलता है, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर। क्लियर? ओके यस यस सर। सर। Yes, यस sir. सर। ओके बच्चों, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर्स थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू लंग्स। क्लियर? यस सर। ओके, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर्स थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू लंग्स। फाइन बेटा। यस Yes. सर। एनी प्रॉब्लम इन इट? नो सर। ओके, तो पैसेज को देखिए कैसे दिखाया है, आइए देखें। तो पैसेज में आप देखें सबसे पहले क्या है? एक्सटर्नल नॉस्टिल्स, देन नेजल चैम्बर, देन internal nostrils, then nasopharynx, then pharynx, then glottis, then larynx and trachea, है ना। larynx trachea तो एक ही साथ में हो जाएंगे। समझे आप मेरी बात? हेलो बेटा, Yes, larynx sir. और trachea एक साथ हो जाएंगे ना। trachea और larynx तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो ये larynx trachea, देन क्या होगा? bronchial tree। समझे आप? यस सर। यस इस सर। तरीके से सर पूरा एक नेसोफैरिंक्स क्या पैसेज। होता है? हाँ बेटा, pharynx क्या होता है? सर नेसोफैरिंक्स क्या नाजोफेरिंक्स, होता है? नाजोफेरिंक्स। सर नेसोफैरिंक्स। Yes. I tell you each and everything. यस सर। I will tell you, I will teach you each and everything. ये सिर्फ यहाँ पे लिखाया है मैंने। एक एक चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। देखिए आपने देखा होगा हम नेजल पैसेज से स्टार्ट करने वाले।
तो ये सब आएगा अभी फेरिंग्स, आपको सब चीजें क्लियर हो जाए, समझ गए? क्लियर? सो डोंट वरी, अभी सब आएगा। आप अभी इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये पैसेज है, आपको वन बाय वन सब मैं बताने वाला हूँ फेरिंग्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। सो डोंट वरी, ओके? क्लियर? यस सर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नेजल पैसेज की, है ना, नेजल पैसेज की। तो नेजल पैसेज में आप देखेंगे इट कंटेन्स एयर फॉर फिल्टरिंग आउट द डस्ट। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हेयर्स मिलेंगे, है ना, जो क्या करेंगे, डस्ट को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। नहीं समझे आप? तो है ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको ट्रैप करेंगे ये, समझे? तो दे कंटेन हेयर फॉर फिल्टरिंग आउट डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, है ना, जो नेजल यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर्स। क्लियर यस बच्चों? सर। वोमेन्स ग्लैंड जो है, वोमेन्स यस ग्लैंड, सर। दिस सीक्रेट म्यूकर, यहाँ पर आपको नेजल पैसेज के अंदर वोमेन्स ग्लैंड मिलती है। अच्छा, ये वोमेन्स बीओ है, डब्ल्यू नहीं है, वो कैप्सूल है, ये वो है, वो है, नहीं समझे? हेलो बच्चों? यस सर, वुमेन्स कैप्सूल किडनी में पाया, हाँ, लेफ्ट वो में। किडनी है, वो किडनी में मिलेगा आपको, दिस वुमेन्स ग्लैंड। और यहाँ पर क्या करेंगी, दे प्रोड्यूस म्यूकस। क्या सीक्रेट करेंगी ये? म्यूकस, म्यूकस। है ना, है ना, स्लाइमी जो होता है, जब आपकी नोज, जो रानी नोज होती है, जो म्यूकस निकलता है, दैट इज द सीक्रेशन ऑफ द वुमेन्स ग्लैंड। ये बहुत याद रखिए, बहुत ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो नेजल पैसेज में जो वुमेन्स ग्लैंड होती है, क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस म्यूकस। समझ गए? यस। अब आप यस सर। देखिए ना, यहाँ पर आपको मालूम है कि जो नेजल, ये जो नेजल पार्टीशन है ना बीच में, ये आगे तो कार्टिलेज है, लेकिन पीछे नेजल बोन्स है। नहीं समझे मेरी बात? पीछे, पीछे क्या, ये तो आगे आगे दिख रहा है आपको, मैं दिख रहा हूं ना आपको मैं? यस सर। ये जो है, ये जो बीच में जिसने नॉस्ट्रिल्स को डिवाइड किया, इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। हेलो? नेजल यस सेप्टम। सर। अंदर आप देखेंगे, अंदर पूरी ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब बोन्स है, नेजल बोन्स है सारी यहाँ पर, समझे? यस यस सर। तो इन बोन्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। सुनना ध्यान से, ये थोड़ा समझना है ना, ये कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पे, थोड़ा समझे। तो यहाँ पे बोन्स के क्या होते हैं, इस तरीके से देखना आप, ऐसे, ऐसे क्या है, दे आर द दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन। बॉन सीधे नहीं है, बॉन सीधे नहीं है, बॉन में क्या मिलेंगे आपको, ग्रुप्स एंड रिजेस। उनको हम क्या कहते हैं, नेजल कॉन्चे, नेजल कॉन्चे। नहीं समझे? अब सर समझोगे? नेजल। तो यहाँ पे जो नेजल बॉन है ना, नेजल बॉन, उनमें क्या है, यस। ऐसे ग्रुप्स एंड रिजेस है। उन ग्रुप्स एंड रिजेस को क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्चे। और ये कितने कितने ग्रुप्स एंड रिजेस होते हैं, थ्री, थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। इन सुपीरियर, सुपीरियर एंड मिडिल एंड इंफीरियर। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्चे। नहीं समझे बेटा? हेलो? सर नेजल बोन एक सिंगल बोन है। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारी बॉन्स है। नेजल, नेजल बॉन तो एक बॉन है, लेकिन ये नेजल पूरा पार्ट बहुत सारी बॉन्स से मिलकर बना होता है। इथमोइड है ना, इथमोइड है, नेजल है, जाइगोमेटिक है, तो बहुत सारी बॉन्ड से मिलके बना है ये पूरा पार्ट, समझे? तो ये सब बॉन्ड मिलके क्या बनाती हैं, ग्रुप्स एंड रिजेस। इनको हम क्या कहते हैं, नेजल कॉन्चे। नेजल कॉन की। नेजल कॉन्चे, सुनना जरा समझे आप पहले। तो ये ग्रुप्स एंड रिजेस को हम क्या कहते हैं, नेजल कॉन्चे। अब जब एयर यहाँ से टकरा, देखिए अगर एयर यहाँ से निकलेगी, सोचे तो इस जगह से एयर निकलेगी तो क्या होगा, यहां से एयर निकलेगी तो एयर क्या है, सीधे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ एयर निकलेगी तो कैसे जाएगी, ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं समझे मेरी बात? तो एयर का बॉडी के साथ में जो कांटेक्ट का एरिया है वो क्या होगा, ऐसा, इंक्रीज ऐसा हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बीच में जो टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा,
क्योंकि जब एयर हमारी बॉडी की सरफेस से निकल के जाएगी तो हमारी बॉडी की हीट जो है वो कौन ले लेगा? एयर। नहीं समझे? यस सर। तो यस एयर क्या सर। हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। वार्म। यस, आपने देखा होगा इसको कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ द एयर। ठंडी, अगर बाहर की ठंडी एयर है तो उसे गर्म करना, बाहर की बहुत गर्म है तो उसे ठंडा करना। नहीं समझे? हेलो सर बेटा। समझ गए। तो ये काम किसका है? नेजल कॉन्चे का। नेजल कॉन्चे, आई बात समझ में? ये बॉन्स के क्या है? डिप्रेशन है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करने का काम करेंगे? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेंगे, जो एयर के टेम्परेचर को बॉडी के अकॉर्डिंग क्या करे? चेंज करे, यानी उसकी क्या करे? कंडीशनिंग ऑफ द एयर। क्या करे? कंडीशनिंग ऑफ द एयर। नहीं समझे बच्चा? सर अगर बाहर की एयर हॉट है तो फिर वो उसे कूल कैसे करा जाएगा? अच्छा, बाहर की एयर हॉट है तो हमारा शरीर तो उसकी कंपेरिजन में ठंडा होगा ना। नहीं समझे? क्योंकि हमारे बॉडी का अच्छा टेम्परेचर तो हाँ। कांस्टेंट है भाई। हमारी यस बॉडी का सर। टेम्परेचर तो 37 है, और बाहर 42 टेम्परेचर है। अभी 37 के कांटेक्ट में आएगा तो अपना टेम्परेचर ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस। और अगर ये बाहर बाहर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 30 है। हमारा तो शरीर एसी है, जिस टेम्परेचर आप लगा दोगे उसी पर रहेगा। और एसी का रेगुलेटर कौन है बताओ? बोलो। नहीं बोलोगे? सर ब्रेन, अरे हाइपोथैलेमस। यस, हाइपोथैलेमस। समझे? तो हमारा बॉडी तो बाहर का कम है तो वो ठंडा होगा, अगर बाहर का कम है, बाहर का ज्यादा है तो वो ठंडी होगी। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो वो मतलब अंदर आएगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। नहीं समझे आप मेरी बात? यस सर समझ गई। तो ये एयर को ठंडा और गर्म करने का काम करते हैं, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग ऑफ एयर। समझे बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम आपको? सर ये नो सर। टर्बाइनल्स क्या नो थे? सर। नेजल बोन का ही नाम था। नेसल कौनचे ग्रुप्स एंड रिजेस होते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारी बॉन्ड्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। अभी मैं उतना डिटेल में आपको बताऊंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा ग्रुप्स, ग्रुप समझते हैं ना? डिप्रेशन है। तो ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रेट नहीं है, बॉन्ड्स ऐसे ऐसे थोड़े ग्रुप्स एंड रिजेस है बॉन्ड्स के अंदर, उनको हम नेजल कौनचे कहते हैं। नहीं समझे बेटा? सर हेलो। यस। मैंने टर्बाइनल योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर बोला वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा, योर था। वॉइस इज नॉट क्लियर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो बच्चा। सर हाँ। सर मैंने ये जो टर्बाइनल्स bone पूछा था, और मैंने कहा था नेजल बोन में जो बोन्स है उन्हीं को। वो हाँ हाँ वो वो आपकी स्लाइड में टर्बाइनल लिखा है ना, तो वो पूछ रही है कि ये टर्बाइनल नेजल बोन्स को ही कहा है। हाँ, उन सबको बोलते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आता है ना, जो एयर के कांटेक्ट में आ रही हैं बॉन्ड, उन सबको हम कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। इट्स नॉट ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल्स। वो बॉन्ड्स को कह रहे हैं एक साथ, जो एयर के कांटेक्ट में आ रही हैं, उस पैसेज उस पाथ में आ रही हैं, उनको कह रहे हैं। नहीं समझे? ट्राइब्यूनल्स। ओके हेलो। सर। वो है ना सर जो बॉन्ड्स विच आर कम इन कांटेक्ट विद द एयर, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड ट्राइब्यूनल्स। और टर्बाइनल्स। क्लियर? उन्हीं के बॉन्ड्स के अंदर क्या है? ग्रुप्स एंड रिजेस। दीज ग्रुप्स एंड रिजेस आर कॉल्ड नेजल कॉन्चे। हेलो। यस सर। यस सर क्लियर है। क्लियर? सर सर हाँ क्लियर है, बेटा। क्लियर है। सर इस बोन के ऊपर और भी बोन्स रहेंगी? अरे ये कोई एक बॉन्ड क्या क्या किस बॉन्ड के क्या कुछ दिखाऊं मैं आपको? क्या क्या बोल रहा? बोलो, दोबारा बोलो। सर इस जहाँ बॉन्ड के ऊपर। पे सर जहाँ पे एयर कांटेक्ट में आ रही है उस बोन के, उसके ऊपर और बोन्स रहेंगी? हाँ, ये तो पूरा फेशियल बॉन्स है ना बेटा, ये तो पूरा फेस है ना। तो ये अंदर के पैसेज में जो जो बॉन्स मिल रही होंगी उनको टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड बॉन्स कहेंगे। उसके ऊपर भी बहुत सारी बॉन्स होंगी, तो पूरा फेशियल बॉन्स है। ये सब तो फेशियल बॉन्स में आएंगे ना बेटा। ओके सर। समझे? तो वो तो बहुत सारी बॉन्स है, फेशियल बहुत सारी बॉन्स है। ठीक है।
हेलो। यस सर। यस सर। ओके, इसको हम और भी डायग्राम से आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और भी डायग्राम्स आपको शो करेंगे। तो टर्मिनेटेड बॉन्ड्स में मुझे ऐसा लगता है टर्मिनेटेड बॉन्ड्स को आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है उसके अंदर, ठीक है। हेलो। यस यस सर। सर। और इस चीज को ही हम कंटिन्यू करेंगे, नेजल पैसेज को ही हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसको मैं अभी यस स्टॉप सर। शेयरिंग कर दूं क्या बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर सर। ओके। सर ये वुमेन्स हाँ बेटा, नेजल एक मिनट एक मिनट। हाँ, बोले, क्या बोल रहे हैं, बोले, बोलिए। आप कैमरा कैसे दिखेगा? हेलो, हेलो बच्चों। सर यस मीटिंग सर। पर आ जाइए। सर क्रोम खोलिए, मीटिंग पे आ जाइए। मीटिंग मीटिंग कहाँ पर है? मीटिंग कहाँ है? सर क्रोम सर पे गूगल नीचे। गूगल क्रोम पे। मीट पे। अरे गूगल क्रोम तो सर वो नीचे टास्क बार में ओके है। ओके ओके ओके। हाँ, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ बोल रहे थे आप, बोले। कुछ बच्चे बोल रहा, कुछ बच्ची कोई बोल रही थी, कुछ बोलिए। हेलो बच्चे, जल्दी बोलो, टाइम हो गया। सर प्लीज एक बारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके डायग्राम पे स्विच कर दीजिए। उसके डायग्राम को क्या कर दीजिए? सर एक बार इसका डायग्राम ओपन कर दीजिए, उसको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके ओके ओके, जस्ट मिनट जस्ट मिनट। हम्म सर डायग्राम हम्म इसको इरेज करना पड़ेगा। अब इरेज भी नहीं होगा क्योंकि ये सेव हो सर हो चुका है। गया, थैंक यू सर, हो गया। मुझे हो यही गया? वाला। यस सर। ओके ओके, हो गया ना? यस सर। ओके बच्चों, देन सर एक एंजॉय चीज और किया आपने? पूछनी थी। हम्म यस सर। एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ बोले। सर B01 की जो बैकअप क्लासेस हैं वो भी आप ही लेंगे? आई डोंट हैव एन आइडिया बेटा, अभी जैसे आज पहली क्लास है। आप हाँ बात कीजिएगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है इस बात का। अगर होगा तो मैं बताऊंगा। आप कौन सा बैच बोल रही हैं बताएं एक बार, मैं आपकी क्वेरी को पूछूंगा, बोले। सर B01। B01, ओके, मैं एक बार बोलूंगा, आप मैनेजमेंट से भी एक बार बात कीजिएगा। वो आपको ओके बेहतर बताएंगे, ठीक है। तब भी मैं एक बार कोशिश करूंगा पूछने की। इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ डायग्राम्स में आपको शो करूंगा जिससे नेजल कॉन्चे वाला पार्ट आपको और क्लियर हो, ठीक है। सर हाँ जी, सर आपका आकाश बोले। आकाश, कॉन्टेक्ट नंबर आपका। कॉन्टेक्ट नंबर, यस you सर। take okay contact number, I will share you contact number। हम है ना, मैं आपका contact नेक्स्ट क्लास में I will share you contact number, ओके ठीक है। सर। ओके, एंड अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे बेटा। एंड थैंक यू सर। बिंदास रहें, अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। गुड इवनिंग थैंक सर। यू। बाय। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग एंड गुड बाय। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बेटा, बाय बाय।